Assalamu alaikum. This lecture is for BBA 2 and the subject is Business Mathematics and it is presented by Ms. Zara. The chapter which we are going to discuss is Mathematics of Finance 2, in which we will discuss effective interest rate, equivalent rate of interest, depreciation by reducing business method, and present value at compound interest. First of all, we are discussing here that what is effective interest rate. Interest rates are typically stated as annual percentage. The stated annual rate is usually referred as the nominal rate. When the interest is compounded semi-annually, quarterly, and monthly, the interest earned during a year is greater than if it's compounded annually. When compounding is done more frequently than annually, an effective annual interest rate can be determined. सिंपल वो क्या कहता है जो इंटरेस्ट रेट होता है वो एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है लेकिन ये एक साल में आप करते हो लेकिन जब आप क्या करते हो कभी कंपाउंडेड सेमी एनुअली कर रहे हो कभी क्वार्टरली कर रहे हो कभी मंथली कर रहे हो तो आप एक साल में बहुत सारा इंटरेस्ट पे करते हो अगर उस इंटरेस्ट के अमाउंट को आप एक्यूमुलेट करते हो तो वो ज़्यादा बन जाएगी अगर आप एनुअली करोगे तो वो कम बनेगी तो उसके लिए वो कहते हैं कि बेहतर है कि आप इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट को यूज़ करो Definition is the effective interest rate is the interest rate compounded annually which is equivalent to the nominal rate compounded more frequently than annually which is equivalent to nominal interest rate compounded more frequently than annually. The two rates would be considered equivalent if will result in the same compound amount. Formula for finding the effective rate of interest. E is equal to 1 plus I raised to power m minus 1. I is the interest rate, E is the effective rate, and m is the number of conversion period in 1 year. For example, the nominal rate is 8% compounded quarterly is equivalent to the effective rate of interest 8.243. How? Nominal interest rate is 8% compounded quarterly. तो एक साल में कितनी बार हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है तो आप m में 4 लिखोगे और इंटरेस्ट रेट 8% को 4 से डिवाइड कर दोगे सिंपल है फॉर्मूला में पुट करो e is equal to 1 plus I raised to power m minus 1 e is equal to 1 plus 0.08 divided by 4 raised to power 4 minus 1 by simplifying it you get the answer that is 0.082432 और अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो इंटरेस्ट रेट जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो परसेंटेज में आ जाएगा दैट इज 8.24%. मूविंग फॉरवर्ड फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट equivalent rate of interest is 1 plus r1 over f1 is equal to 1 plus r2 over f2 multiply power f2. Now here we know that if one interest rate is unknown and the one is known, how we can find the unknown one? Look, f1 is number of period for nominal rate, r1 is the unknown nominal interest rate, f1 is the number of time the compound is required per year for nominal rate. Then R2 is the given interest rate. एक interest rate जो आपको नहीं पता that is the unknown nominal interest rate और R2 क्या है given interest rate. F2 is the number of period for the given rate and F2 of the time the compounding is required per year. Example. At what nominal rate compounded quarterly will a principal accumulate to same amount as it is compounded 8% compounded semi-annually. R1 हमें नहीं पता उसको हम लेट करते हैं x से F1 compounded quarterly तो it is 4 है R2 8% compounded semi-annually तो क्या आ गया 2 आ गया फॉर्मूला हमारे पास आ गया हमने फॉर्मूला लिखा -1 उधर जाके +1 हुआ और इसलिए वो गायब हो गया 1 plus x over 4 because it is compounded quarterly so 4 पावर में भी आ गया और दूसरा सेमी एनुअली था तो 2 से डिवाइड किया 2 ही पावर में आ गया 1 plus x over 4 raised to power 4 is equal to 1 plus 0.04 raised to power 2 अब आप क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट लेके यहाँ वाला 4 जो है वो 2 रह जाएगा और उधर वाला 2 की पावर जो राइट साइड वाली है वो खत्म हो जाएगी मूविंग फॉरवर्ड अगेन वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अगेन स्क्वायर रूट लेके आप क्या करोगे ये स्क्वायर भी खत्म हो गया लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट लेके वैल्यू क्या आ गई 1.0198 x over 4 इधर रह गया 1 जो है इट मूव टू द राइट हैंड साइड वहाँ जाके माइनस हो गया by minus we get 0.10198 and by multiplying it by 4 we get the answer that is 0.0792
and if we need the answer in percentage, we have to multiply it by 100. Then we will get 7.92%. Moving forward, this is another topic which is depreciation by reducing balance method. If C is the original cost of the machinery and T is the trade-in or scrap value of the machinery after n years of useful life, and R is the percentage rate of the depreciation or reduced balance method each year, then the depreciation would be C क्या वो कहते हैं कॉस्ट है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T क्या है, इट इज़ द स्क्रैप वैल्यू कि मतलब जब आपका एक ख़राब हो जाता है, मतलब यूज़ हो गया यूजफुल लाइफ के लिए, 10 ईयर्स एक की लाइफ थी, 10 ईयर बाद उसकी क्या वैल्यू होगी, 10 ईयर्स बाद अगर आप उसको बेचोगे तो उसकी क्या वैल्यू होगी। लेट्स सपोज एक गाड़ी आपने अपनी अभी ली है 12 लाख की, एंड आफ्टर उसकी जो लाइफ है दैट इज़ 10 ईयर्स, एंड आफ्टर 10 ईयर्स इट वुड बी ऑफ जस्ट 3 to 4 लाख, देन 3 to 4 लाख इज ट्रेड इन वैल्यू टी। Here we will see that depreciation for first year is CR, कॉस्ट को सिंपल आर से मल्टीप्लाई कर दिया। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि अब रेजिडुअल वैल्यू अब आपकी क्या हो गई है, इतनी से कम हो गई है। आप क्या करोगे, कॉस्ट में से जो प्रीवियस फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन निकाली उसको माइनस करोगे और सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन आप उस वैल्यू पे फाइंड आउट करोगे। देखें फर्स्ट ईयर में आपने क्या किया, सी आर कॉस्ट के ऊपर फाइंड किया है, फिर कॉस्ट में से आपने क्या किया है, इस फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन को माइनस किया। अब अमाउंट आपके पास क्या बनी है, माइनस करने के बाद सी इंटू 1 माइनस आर। तो अब सेकेंड पीरियड में आप क्या करोगे, जो रेजिडुअल वैल्यू है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई करोगे। सो सी इंटू 1 माइनस आर मल्टीप्लाई बाय आर। अगेन आप क्या करोगे, ये आई है डेप्रिसिएशन, इसको आप माइनस करोगे जो फर्स्ट ईयर की रेजिडुअल वैल्यू थी जिसके ऊपर आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है या डेप्रिसिएशन फाइंड आउट किया। तो c इंटू 1 माइनस आर माइनस c इंटू 1 माइनस आर इंटू आर, वट इट कम्स c इंटू 1 माइनस आर होल स्क्वायर। सो इसी तरह अगर ये कंटिन्यू होता रहेगा तो फर्स्ट ईयर के बाद पावर में 1 था, सेकेंड ईयर के बाद पावर में 2 है, तो अगर n ईयर्स होगा तो पावर में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो c इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n। Since n is the useful life of the machinery when its residual value is t, therefore c into 1 minus r raised to power n is equals to t, means after n years जितनी भी यूजफुल लाइफ है उसके बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो वही होगी जो ट्रेड इन वैल्यू होगी। तो वहाँ से हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, 1 माइनस आर रेज टू पावर n इज इक्वल टू टी ओवर सी, 1 माइनस आर इज इक्वल टू टी ओवर सी होल अंडर रूट, दिस इज nth पार्ट क्योंकि n था आपके लेफ्ट हैंड साइड पे पावर में तो हमने nth रूट ले लिया, तो r इज इक्वल टू 1 माइनस nth रूट ऑफ टी ओवर सी, या इसको हम पावर में भी लिख सकते हैं। Solving this question, a plant of the company is purchased for rupees 2 lakh and it's estimated that at the end of useful life of 10 years, its scrap value will be only rupees 25,000. What depreciation rate should be charged per year on reducing balance method for the value of the asset? Simple, आपकी जो cost है वो क्या है 2 lakh, 10 years आपकी क्या है estimated life है और trade in value क्या है 25,000. By putting it we get the answer. अब इसके अंदर देखें ये क्या हमने लिया, 10th रूट लिया है। जो कैलकुलेटर यहाँ पे बना हुआ है ये आपको बताने के लिए कि आप 10th रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, बाय प्रेसिंग द शिफ्ट एंड देन दिस हैट बटन। ठीक है, शिफ्ट के ऊपर भी सर्कल किया हुआ है ब्लैक कलर का और हैट के ऊपर भी सर्कल किया हुआ है। आपने ये करना है, पहले शिफ्ट प्रेस करना है और फिर हैट बटन। कुछ के अंदर आता है इसी तरह, यहाँ पर कुछ में आपको करना पड़ता है 10 प्रेस करके, पहले आप 10 लिखोगे फिर शिफ्ट हैट और फिर अमाउंट लिखोगे और इक्वल टू करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसको फिर आप 1 में से माइनस करोगे, यू विल गेट द आंसर ऑफ आर, एंड इफ यू वांट द आंसर इन परसेंटेज यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100. Moving forward, this is the last our objective in this presentation, that is the present value at compound interest. प्रेजेंट वैल्यू आपने इनिशियली पढ़ा था हमने फॉर्मूला दैट एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। अगर हमने इसमें से प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे, 1 प्लस आई रेज टू पावर एन जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एस इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन, डिवाइड में था तो उसको मैं ऊपर ले आई तो वो क्या हो गया माइनस एन। और एक और बात आपके लिए, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला और डिस्काउंटिंग फार्मूला, और इसके अंदर जो फैक्टर है ना 1 ओवर 1 प्लस आई रेज टू पावर एन, या फिर आप इसको कहोगे 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन, इसको हम डिस्काउंटिंग फैक्टर भी कहते हैं। ये आपके एमसीक्यूज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
व्हाट इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर? जो s के साथ वाली चीज है, दैट इज 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या डिस्काउंटिंग फैक्टर. Example over here is find the present value of $4814.07 due at the end of 8 years if money is worth 6% compounded semi-annually. आपने वो चीज़ें याद रखनी है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली तो इंटरेस्ट रेट को 2 से डिवाइड करना है और जितने ईयर्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए, तो P इज इक्वल टू S इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n. वैल्यूज पुट की हैं और वैल्यूज पुट करके हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया है. सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ₹3,000. Moving forward, we have a question of application on discounting interest bearing and non-interest bearing. Non-interest bearing note of ₹3,000 is due in 5 years for now. If the note is discounted now at 6% compounded semi-annually, what will be the proceed and the discount amount? Simple. Now, अभी का बात किया तो प्रेजेंट वैल्यू, इसने प्रेजेंट वैल्यू का वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन उसने 5 years from now का है. अभी कहा है तो प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. इफ द नोट इज डिस्काउंटेड नाउ, अगर अभी डिस्काउंट हो रहा है. P is equal to S into 1 plus I raised to power minus n. Again 6% compounded semi annually था तो 2 से डिवाइड कर दिया और 5 years को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सिंपल किया तो P का आंसर आ गया. और कंपाउंड डिस्काउंट हम कैसे करते हैं, P कंपाउंड अमाउंट क्या करते हैं, अमाउंट में से हमने प्रेजेंट वैल्यू को माइनस कर दिया. तो व्हाट वी गेट दैट कंपाउंड डिस्काउंट इज 767.72. Moving forward, this is an example of interest-bearing note. An interest-bearing note of ₹5,000 dated January 1, 1980 at 6% compounded quarterly for 10 years was discounted for January 1, 1984. What were the proceed and the compound discount if the note was discounted at 8%? Look, जब हमने पिछली बार किया था तो उसमें कंपाउंड का वर्ड नहीं आ रहा था. अब कंपाउंड का वर्ड आ रहा है तो हमें पता चल रहा है अब हम कंपाउंड का काम कर रहे हैं. अगेन इसमें हम पहले 2 स्टेजेस में काम करेंगे. पहले हम मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर प्रेजेंट वैल्यू. तो मैच्योरिटी वैल्यू तो सिंपल हम ऐसे ही करेंगे कि 6 years है और क्वार्टरली हो रहा है, तो P हमारे पास 5,000 है. S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. 6% को 4 से डिवाइड कर दिया है और n 10 को 4 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई 9070.09. स्टेप 2 में आप क्या करोगे, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹9070. अब हमने क्या करना है, जो 9070 इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो 9070.09 इंटू 1 प्लस आई दैट इज 0.08 डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2. अब जो अमाउंट आई थी आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो. अब क्या था, इसमें भी हमें पहले प्रेजेंट वैल्यू दी गई थी, अमाउंट नहीं दी गई थी. हमने पहले क्या किया, अमाउंट फाइंड आउट की और फिर वो अमाउंट कंपाउंड करने के बाद, कंपाउंडेड वाली अमाउंट नहीं दी गई थी, पहले हमने कंपाउंड अमाउंट फाइंड की और वो कंपाउंड अमाउंट को फाइंड करके अब हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, फॉर्मूला में पुट किया, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर ली. और कंपाउंड डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, जो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास थी 9070.09, उसमें से हमने माइनस क्या कर दी 566 पॉइंट, अमाउंट में से प्रेजेंट वैल्यू को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, कंपाउंड डिस्काउंट. Now, this is your assignment. You have to do these 3 questions. Keep in mind कि जो पीछे मैंने सारा कराया है ये उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं, उनको गौर से देखें. नहीं समझ आती एक बारी फिर देखें, सॉल्व हो जाएगा आपसे आंसर. नहीं हुआ देन आई एम हियर टू आंसर यू. थैंक यू.